Mr. Tripathi. Yeah. Yes, ठीक है सर, it's all right. अच्छा अच्छा, इट्स ओके। चलिए ठीक है। सो आई वेलकम मिस्टर कॉल एंड मिस्टर त्रिपाठी in this another session of entrepreneurship cell from School of Open Learning, Delhi University. जैसे हमारा इस सीरीज ऑफ सेशंस होता है, तो इस स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो करंट स्टूडेंट्स हैं या वो एलुमनाई हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, so we talk about various career pathways, what are the various like options both as a self-employed professional, yeah, maybe as a job. So in continuation of that series, so I had a couple of meetings with Mr. Call, and उसी को आगे follow up करते हुए in today's session we are going to talk about, discuss a brief orientation about the direct marketing schemes, what kind of career options, what kind of self-employment options, how can one look for a career both within India, internationally. There are some myths, there are some like perceptions around this kind of scheme. So वो भी in this brief orientation session we will try to like sort out. और इसी series को जो हमारे orientation session है, we will continue it in a follow up like subsequent sessions, जहाँ पे maybe we can discuss in detail how somebody can register, how somebody can refer, and what are the nitty gritties, what are the further like nuances, details of this particular scheme. So like maybe today, just like in the opening remarks, maybe Mr. Call, maybe you can start, followed by Mr. Sure. Tripathi, and then during the discussion we will like take up some queries which the students have. Yeah. So I welcome Right, you, sir. both of Right. you. Yeah. Thank you, sir. Thank Morning, sir. Thank you very much. Thank you very much. And I am very grateful to you that you have given us opportunity for giving our views and some myths and career paths regarding the direct marketing as far the direct selling is concerned, sir. Moreover, Mr. Tripathi is with me. He will be giving much more details about the direct marketing. So, as far the direct marketing is concerned, it's a way back in 1855. That's the 18th century. This has started. So, it's a very old marketing strategy and marketing. We can't call it as a scheme, but it's a strategy. It's a and it has come 160 years from that particular era. And till that time, we used to have a barter system. Okay. So barter system, and they started it, and they started it door-to-door selling in those eras. So after that, having a evolution of the earth and evolution of the all the norms, what we have found that direct selling has become an entrepreneurship for coming from such an era. And at the present moment, sir, if we'll be looking at it, it's a $1 billion industry now, as per the direct selling is concerned. So question arises that there is a confusion between some things, that's a direct marketing and the scheme or multi-level marketing or such kind of things. There is a little bit of difference between the two. There is not a much a difference, but there is a small difference between the two. And Mr. Tripathi is going to give us a detailed program and detailed structure about the direct marketing, how it works, what are the benefits that the people can get out of that. And as an entrepreneurship, since we have got a job scarcity as per the company, this country is concerned, how can one become more successful and how can one become more employer of his own and self-employed? Mr. Tripathi is going to give us a detailed structure about the direct marketing. I hope that Mr. Tripathi is ready to give us that. So, Mr. Vivek ji, please do give a detailed version about the direct marketing. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, Anurag sir. Thank you. Can I speak in Hindi? Matter हाँ है हाँ, कि आप हिंदी clear में होना कर लीजिए। चाहिए। हाँ, हिंदी में, क्योंकि बिल्कुल मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं दे आर फ्रॉम अ हिंदी बैकग्राउंड। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मोटिव यही है कि मैसेज पहुंचे कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, करियर पाथ भी क्या है, इंडस्ट्री कहां तक, किसका फ्यूचर क्या है, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या होगा, सबसे पहले कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग है क्या, फिर है कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, और लास्ट में हाउ, इसको कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में। जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि इसका बहुत सारा मिथ्स है, इशू है, बहुत सारे निगेटिविटी है, उस सब चीज को सॉल्व करते हुए आज बात हम लोग करने वाले हैं। तो आप अलाउ करोगे सर तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आप अलाउ करोगे, एक बार चेक कर लें।
आपकी सर आवाज सर, आ नहीं रही है। अनुराग सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं? आप नहीं नहीं, नहीं नहीं, अब वो विवेक मेरी जी कह रहे अपनी। हैं। नहीं नहीं, एक ओके सेकेंड, ओके, जस्ट अ मिनट। मेरी सर स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है एक सर? हाँ आपकी, नहीं नहीं अभी नहीं दिखी, एक सेकेंड, स्क्रीन अभी दिख रही है सर? इट्स विजिबल। एक सेकेंड, एक मिनट। देखिए मैंने आपको ऐसा को होस्ट कर दिया है, तो अब आप शायद शेयर कर ओके, पाएंगे। अच्छा अच्छा, अ, हाँ अब आप शेयर कर पाओगे। ठीक है। अभी 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 सर दिख रही है मेरी स्क्रीन? स्क्रीन एक बार आप बता दो मेरी। हाँ आप दिख रही है, दिख स्क्रीन रही है। इसको आप अगर दिख फुल रही है, कर दो ना आप, ठीक। तो इसको फुल व्यू हाँ कर हाँ, देंगे तो फिर इसको अच्छा हो जाएगा। एक बार करते हैं, ठीक है ठीक है। तो आप आज ठीक है सबसे बेटा। बड़ा डिस्कशन क्या है? सबसे बड़ा क्या है कि आज हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग ओके कैसे काम करता है। ये दो चीज बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, और क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, सिंपल वे में जानेंगे। जैसे कि नाम इंट्रोड्यूस हो रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग में बनता है वो डायरेक्ट कस्टमर तक चीजें पहुंच रहा है, यानी मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है, एक फ्रेंचाइजी ऑनरशिप दिया जाता है, आप दूसरे भाषा में ऐसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है, उसका एक एग्जाम्पल आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पेन है, फॉर एग्जाम्पल रोरिटो का पेन आपके सामने है। मुझे चाहिए वो पेन, मुझे चाहिए वो पेन, कहां से लेकर आएंगे? ओबियसली कि हमें जाकर शॉपकीपर से लेकर आना होगा, दुकानदार से लेकर आना होगा, जाकर हम इनसे पेन डिमांड करेंगे, मुझे पेन मिल जाना है। पेन मिल जाएगा, लेकिन इनके पास पेन आया कहां से? इनके पास देखा जाए तो कोई ना कोई होलसेलर इनको दिया है। होलसेलर के पास आता कहां से? कि कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर इनको दिया। डिस्ट्रीब्यूटर के पास फाइनली प्रोडक्ट आया कहां से? वो पेन आया कहां से? यानी मैन्युफैक्चरर के पास उस चीजें बन रहे हैं। कुल मिलाकर एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि पेन का कीमत 10 रुपए है, यदि पेन का कीमत 10 रुपए है, तो रिटेलर के पास वो 8 रुपए में आए होंगे, होलसेलर के पास 7 रुपए में आए होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास वही पेन 6 रुपए में आए होंगे। यानी प्रोडक्ट जो बना है, पेन जो बना है, वो 4 रुपए में बना है। तो 4 रुपए का पेन 10 रुपए कंज्यूमर दे रहा है, लेकिन कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, यानी उस पेन के बारे में मालूम कहां से चलता है? तो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से मालूम चलता है। वो एडवर्टीजमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसमें वो 2 रुपए चल गया। कुल मिलाकर 4 रुपए की चीज 10 रुपए में, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्या कहता है, उस चीज को हम समझते हैं। यहां पर क्या हुआ कि बाय द वे हमारे पास काफी सारे बच्चे हैं, 50 करोड़ बच्चे हैं, जिसमें से 1 करोड़ प्रतिदिन जाकर पेन लेते हैं। वो 10 रुपए का पेन, यानी 10 करोड़ रुपए का बिक्री हुआ, यानी टोटल टर्नओवर उस दिन का उस पेन का 10 करोड़ का होता है। एक्चुअल पेन का जो प्राइस है वो 4 करोड़ है। मिडिल मैन यानी कि जो बीच के लोग हैं, उन पे कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? 6 करोड़ रुपए। किसके जेब से? हमारे और आपकी, यानी कंज्यूमर के जेब से जा रहा है। 6 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और देखें, अगर एक दिन में 1 करोड़ पेन बिकता है, तो 30 दिन में 30 करोड़ पेन बिकेगा। तो 6 रुपए हम मिडिल मैन को दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के पीछे मिडिल मैन में। तो लगभग 6 करोड़ 30 दिन में, यानी 180 करोड़, और साल में 9600 करोड़। एग्जाम्पल ये है, 9600 करोड़ किसके पास चला जा रहा है? मिडिल मैन के पास जा रहा है। किनके पास जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड में जा रहा है। 4 रुपए का चीज है, 10 रुपए में कंज्यूमर खरीदता है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा कि लगभग 9600 करोड़ बीच वाले लोगों को चला जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट। यही तो अभी तक हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कहता क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। अगर हम मिडिल मैन और एडवर्टीजमेंट को हटा दे, अगर हम मिडिल मैन और एडवर्टीजमेंट को हटा दे, तो हम लाखों करोड़ रुपए बचा सकते हैं। अब इस चीज को समझते हैं। यहां पर क्या हुआ, फैक्ट्री में चीजें बना, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के होते हुए कंज्यूमर के पास आता है। यदि मिडिल मैन को हटा दें और तो डायरेक्ट हमारे पास पहुंचेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सबसे पहले हम सेविंग कर सकते हैं। वही क्वालिटी का प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं? सेविंग कर सकते हैं, पहला चीज। और यहां पर यदि हम इस चीज को लोगों को बताए, फिर एक अदर एग्जांपल के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक मूवी आया, जिसको हमें लग रहा है कि सब लोग इस मूवी को देखे होंगे, जो बाहुबली 2 का है, कि इस आपके सामने दिख रहा है मूवी।
हम जाकर इसको देखते हैं, थिएटर में जाकर देखा, बहुत ही अच्छा लगा। और जाने के बाद मतलब देखने के बाद हम अपने दोस्तों से इस बात को लेकर शेयर करते हैं कि यार हमने एक मूवी देखा, बहुत बेहतरीन मूवी, तुम्हें भी देखना चाहिए। और ये बात सुनकर मेरे दोस्त आस पड़ोस वाले भी जाकर मूवी देखते हैं। तो देखने से क्या, आपको मूवी वाले ने कोई पैसा दिया, कोई आपको प्रोड्यूसर आकर कोई पैसा दिया, या कोई भी किसी भी माध्यम से आपको पैसा मिला? नहीं मिला। अब यहाँ पर क्या है, यदि यही आप चाहते हो, यदि आप जो भी आपको अच्छा लगता है, जाने अनजाने चीजें हम क्या करते हैं, शेयर करते रहे हैं। आज नहीं, बहुत पहले से करते रहे हैं। यदि इसी चीज को यदि हम शेयर करेंगे तो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जहां से आप डायरेक्ट एक फ्रेंचाइजीशिप ले सकते हैं कोई भी अच्छा डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन का, और जहां से बहुत बड़ा कमा सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए? सबसे बड़ा चीज क्या है कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब हम देखते हैं कि कोई भी काम खराब नहीं है, जहां से ब्रेड एंड बटर चल रहा है वो अच्छा है। हम एक एजुकेशन लेते हैं, जो भी हमने करियर सेलेक्ट किया है उस अकॉर्डिंग, यानी कि जॉब या हम सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी हम काम करते हैं, लेकिन वहां पर एक क्या है कि एक लिमिटेशन है, आपका एफर्ट का लिमिटेशन, टाइम का लिमिटेशन। बात करें तो आपने जो डिग्री लिया है उसका लिमिटेशन, तो एक हद तक तो ग्रोथ हमें मिल पाता है, लेकिन एक समय के बाद हम ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक लिमिटेशन है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपका लगातार ग्रोथ होते चला जाता है। कारण क्या है, यहां पर हमें टाइम मल्टीप्लाई करने का मौका मिल जाता है। टाइम मल्टीप्लाई जो व्यक्ति कर सकता है तो पैसा भी मल्टीप्लाई होगा, आपका ग्रोथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन मिल जाता है। तो सर, हो सकता है कि इस सवाल जो भी जवाब अभी देने की कोशिश की है इससे पता लगा होगा। शायद दूसरा हम इसी के आगे थोड़ा बात जरूर करना चाहेंगे। सर आप जरूर पूछ सकते हैं, हो सकता है मेरा चेहरा जरूर नहीं दिख रहा होगा, मेरा आपका वॉइस जरूर सुनाई देगा। जो दूसरा सवाल आपका है वो जरूर पूछ सकते हैं सर। अभी ठीक है। आपने तो बेसिक लाइक अभी मॉडल तो आपने बता दिया ना, वही जैसे अब लो स्टार्टअप कॉस्ट, तो आगे आप जो आप बता रहे हैं एक बारी मैं पूरा उसको देख लेते हैं, हाँ कहीं पे देख कोई लेते हैं, होगा ठीक क्वेरी है। आई विल गेट टू नो। अभी वी हैव अंडरस्टूड द अब मॉडल, सो इट्स बेसिकली फ्रॉम फैक्ट्री टू डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। या बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे बड़ा चीज क्या है कि कैसे किया जा सकता है और क्यों करना है। सबसे बड़ा चीज क्या है कि क्यों करना है। क्या हर एक लोग जो भी व्यक्ति हैं वो स्टूडेंट हो, या आप बात करें तो कोई भी कोर्स किए हुए हो, या हाउसवाइफ हो, या कोई भी, इसको कोई भी कर सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है, पहला एडवांटेज है कि एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है, एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल जहां पर लो स्टार्टअप कॉस्ट है, जिसको शुरू करने के लिए कोई एज सच इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप अपने एक्चुअल एक्सपेंसेस बिजनेस को ड्राइव कर सकते हो। तो इस तरीके का एक बिजनेस मॉड्यूल है। पहला, यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से एक्सपीरियंस लोग आपको गाइड करते हुए मिलेंगे, आपको एक रास्ता दिखाते हुए मिलेंगे कि आपको करना क्या है। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग यहां पर एक सिस्टम आपको पता लगेगा जिसका नाम है एजुकेशन सिस्टम, जहां पर आपको आगे बढ़ाने में मददगार मिलेगा। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नथिंग टू वरी, आप यहां पर बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हो। तीसरा क्या है, सीखने का अपार संभावना। यहां पर जो सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ जो ट्रेनिंग सिस्टम है, यहाँ पर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें सिखाया जाता है, जहां पर आप प्रैक्टिकली सीख सकते हो सेल्स के बारे में, आप प्रैक्टिकली सीख सकते हो कि मार्केटिंग किस तरीके से किया जा सके, लीडरशिप क्वालिटी, जो कि शायद आप मैनेजमेंट के कोर्सेज में आप ये सारी चीजें देखते होंगे। तो लीडरशिप क्वालिटी आप प्रैक्टिकली यहाँ सीख सकते हैं। पीआर डेवलपमेंट, पब्लिक रिलेशनशिप आप सीख सकते हैं, बिजनेस टेक्निक सीख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है कि आपको एक बना बनाया सिस्टम मिलता है, यू गेट ए प्रूवन सिस्टम। कोई एक्सपेरिमेंटल, यानी आपको एक्सपेरिमेंट करने का चीज नहीं है कि यार हमारे पास चलो पैसा नहीं लगता है तो चलो करके देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि समय किसी का लग रहा है तो समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक चीज लग रहा है समय, तो आपको एक ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम जो ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, बेंचमार्क स्थापित कर चुका है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको एक प्रूवन सिस्टम यहां पर मिलता है। प्रूवन सिस्टम का फायदा क्या है कि आपका टाइम बचेगा।
आपका टाइम बचेगा सबसे पहले, क्योंकि आप क्या करते हो कि आपका कोई नया चीज में समय नहीं गवाते हो। सबसे बड़ा चीज है कि समय के साथ आपके पास पैसा भी बचेगा, आपका वेस्ट ऑफ मनी नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास प्लेटफॉर्म वो तैयार आपको मिलता है। जो भी इनके डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका एक अलग एडवांटेज है। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो मार्केट से, क्योंकि इनका जो भी प्रोडक्ट है एक R&D किया हुआ प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल सर्विस ट्राइड टेस्ट किया हुआ प्रोडक्ट है। इनका अपना यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है इनका, जो इनको अलग बनाता है। तो एज फार एज द क्वालिटी इज कंसर्न कोई कंपनी टच नहीं कर सकता। कारण क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा इन्होंने पैसा जो खर्च करना होता है डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट का क्वालिटी के ऊपर ही होता है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से पास ऑन होकर होता है। क्वालिटी की बात करें तो फेम एंड रिकग्निशन सब लोग चाहते हैं कि यार हमें तो घर वाले जानते हैं, आस पड़ोस वाले जानते हैं, लेकिन और सारे बहुत सारे लोग हमें नहीं जानता है। नेम एंड फेम रिकग्निशन, मान सम्मान यहाँ पर बहुत बड़ा आपको मिलने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे, यानी डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे आप रिकग्निशन प्राप्त कर सकते हो, सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ते हो रिकग्नाइज किया जाता है। एक्टिव इनकम दिखा है। एक्टिव इनकम लगभग सारे लोग कमाते हैं। मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जैसे जैसे हम पैसा कमाते हैं, यानी टाइम देते हैं तो पैसा कमाते हैं। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि हम पैसा कब कमाते हैं? जब समय देते हैं। तो एक्टिव इनकम लगभग सारे लोग अर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मौका मिलता है एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम जनरेट करने का। जो भी आपने मेहनत किया वो मेहनत कभी भी खराब नहीं होता है। यदि आप लगातार एक सिस्टम को फॉलो करके काम किया तो एक बड़ा सा पैसिव इनकम बना सकते हैं, कि कभी काम कर किया भी नहीं तो भी आपके पास वो रिटर्न मिलते रहेगा। तो एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक्टिव इनकम को थोड़ा सा और, पैसिव इनकम को और थोड़ा डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि संपत्ति के साथ सम्मान, सुरक्षा, समय, ये सारा चीज प्राप्त किया जा सकता है यहाँ पर। क्यों जरूरी है इस काम के लिए? सबसे बड़ा क्यों जरूरी है आपको मालूम है? लगातार इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर लगातार बढ़ रहा है। और ये मेरा बिल्कुल सर्वे नहीं है, ये सरकार का सर्वे है। और इस सर्वे में क्या पता लगता है कि आज एवरेज मंथली इनकम मिडिल क्लास फैमिली का क्या है? क्योंकि ये भी तो सच्चाई है ना, 90% लोग मिडिल क्लास से ही है। तो 1940 का बात है, 1940 में मात्र 10 रुपए जिस घर का कमाई था, उस घर में पूरा देखा जाए उस वक्त परिवार भी बड़ा हुआ करता था। 10 रुपए के कमाई पे पूरे परिवार को चलाया जा सकता था। छोटे मोटे जो भी उनके काम थे, बच्चों का शादी से लेकर बच्चे का पढ़ाई से लेकर सारी चीजें उसमें कर लेते थे वो। 1960 यानी 20 साल बाद एक जीरो बढ़ गया। 100 रुपए जिस घर के कमाई था तो ये सारी चीजें वो कर पाते थे। परिवार धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो गया। 1980 की बात करें तो जब कमाई 1000 रुपए होते थे तब परिवार का खर्चे चला पाता था, बच्चे पढ़ पाते थे या शादी वगैरह सारी चीजें कर पाते थे। 2000, ये तो हमें भी याद है, शायद हम सभी को याद होगा कि 2000 में लगभग 10,000 घर का कमाई था तो ही उनके बच्चे पढ़ पाते थे, या छोटा मोटा वो प्रॉपर्टी ले पाते थे और जो भी बेसिक खर्चे हैं वो चला पाते थे। आज के डेट में हम 2022 में हैं, 22 साल, लगभग 20 साल क्रॉस कर चुका है, 22 साल मान के चलो कि आज की डेट में यदि किसी का कमाई 10,000 रुपए हो तो आप सोच सकते हो कि क्या वो जी पाएगा? शायद जिंदा रहेगा, कंप्रोमाइज का जिंदगी जरूर जी सकता है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि उसका लाइफ स्टाइल कुछ नहीं होना है। आज की डेट में यदि हमारा कमाई 1 लाख रुपए नहीं है तो शायद हम कंप्रोमाइज का जिंदगी जिएंगे, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है, लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये सवाल उठता है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या हमें महीने का 1 लाख रुपए आसानी से प्राप्त हो सकता है? सर, हो सकता है 5% भी लोग नहीं है जो 1 लाख से ऊपर आज की डेट में अर्निंग है, नहीं है, ये सच्चाई है हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे लिए बड़ा चैलेंज आता है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या हम अपना काम करते हैं, सभी अच्छा है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन क्या बनता है कि हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, अलग से लिमिटेड इनकम है, और हम जो भी कमाते हैं समय देकर कमाते हैं तो अलग से समय बनता नहीं, एक्टिव इनकम है, और सिक्योरिटी नहीं है। कब नौकरी छूट जाएगा या कब नौकरी रहेगा या नहीं रहेगा उसका गारंटी नहीं है, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है।
हाँ, बिजनेस यदि हम करते हैं या बड़ा पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने, बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, हमें बोल सकते हैं नॉलेज चाहिए, बहुत सारा ज्ञान चाहिए, हमें अनुभव होना चाहिए उस काम को लेकर, जबरदस्त आपने मतलब नौकरी से ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, रिस्क लेने का ताकत होना चाहिए। शायद मिडिल क्लास वाले के पास ये सारी चीजें नहीं होता। व्हाट टू डू, करे तो करे क्या? तो हमारे पास एक ही बोल सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास है इस 21st सेंचुरी में कि जो आप इसको कैश ऑन कर सकते हो, इसको बहुत बड़ा बना सकते हो सर। और एक और चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, मेरा बैक हो गया, कोई बात नहीं। हम इसको डायरेक्ट सेलिंग को इतना क्यों, वाई डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि यदि यदि एक काम यूएस से, आप थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक एक सर्वे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखना कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगभग 100 साल पुराना है। आज सबसे नंबर 1 पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 पे वो यूएसए है। यूएसए के पॉपुलेशन आप ध्यान दोगे, हालांकि ये पुराना थोड़ा सर्वे है, लेकिन आप इस चीज को देखोगे, मात्र 32 से 35 करोड़ का पॉपुलेशन है। 32 से 35 करोड़ का सिर्फ पॉपुलेशन है, लेकिन टर्नओवर वाइज देखा जाए तो 2,12,000 करोड़ का इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग का। दूसरी तरफ बात करें तो चाइना में पॉपुलेशन ओब्वियसली ज्यादा है। चाइना में पॉपुलेशन की बात करें तो ज्यादा पॉपुलेशन है उनका, लेकिन उस हिसाब से वो टर्नओवर कर रहे हैं, उनके पास बड़ा स्कोप है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जापान में मात्र 12 करोड़ का पॉपुलेशन है, वहां पर 1,16,000 करोड़ का इंडस्ट्री है। लगातार आप देख सकते हो, हमारा पड़ोसी देश मलेशिया की बात करें तो मात्र 3 करोड़ का पॉपुलेशन है और वहां 30,000 करोड़ का वो टर्नओवर कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हम पॉपुलेशन में 132 से 35 करोड़ हैं और टर्नओवर में 7800 से 10,000 करोड़ मात्र कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन बहुत बड़ा है, हमारे पास मैन पावर है। ये हम इसको उसको निगेटिव नहीं ले सकते, एक तरह से हम इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट के रूप में ले सकते हैं। इंडिया इज ए स्लीपिंग जायंट एस्टिमेटेड टू अचीव 64,500 करोड़ बाय 2025। ये खुद हम भी नहीं बोल रहे हैं, एक संस्था है केपीएमजी। केपीएमजी एक ऐसा संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग को पूरी ओवरऑल देखता है कि ग्रोथ क्या चल रहा है। तो इंडिया बहुत बड़ा छलांग लगाने वाला है, बहुत बड़ा छलांग लगाने, आने वाला फ्यूचर हमारा एब्सोल्युटली सेफ है। यहाँ पर आप कोई भी काम को करते हुए भी इस बिजनेस को कर सकते, बड़ी बात ये है। अब आपको एक फैक्ट बताते हैं, बहुत सारे लोग इस ऐसा लगता होगा कि यार सारे लोग तो यही काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग ही कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है। हालांकि 2020 का है, थोड़ा सा डाटा आप बढ़ा लेना, लेकिन द नंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्ट सेलर जो है, जो 3 महीने में एटलीस्ट एक बार ऑर्डर डालते हैं, वो मात्र 5.7 मिलियन है, यानी 57 लाख सिर्फ है। 57 लाख सिर्फ है सर। इस बात पे इसलिए बोलना है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन लगभग 130 से 135 करोड़ है, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे 80 करोड़ के करीब है। 80 करोड़ के करीब आप इस समझना, माइनस कर दे 57 लाख, तो हमारे पास ह्यूज स्कोप है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा करियर इसके साथ हम बोल सकते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि एक फिक्की का रिपोर्ट आया, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर का एक आया है रिपोर्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन बिल्डिंग इंडिया। पहले स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया में इसका कंट्रीब्यूशन रहा, स्की इंडिया, डिजिटल इंडिया में इसका कंट्रीब्यूशन रहा। सबसे बड़ी बात क्या है, आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि डिमोनेटाइजेशन आया, व्हाइट ब्लैक मनी का बहुत ज्यादा हो चुका था। तो चाहता था, मतलब देखा जाए तो सरकार भी चाहता था कि यार ये व्हाइट ब्लैक ना कम हो जाए, बिल्कुल खत्म सा हो जाए। ऐसा बड़ा पॉसिबल लगता नहीं है, लेकिन उसके बाद बहुत हद तक कम हो गया। आपको हम बताना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर जीरो अनअकाउंटेबल मनी है, जीरो अनअकाउंटेबल। इवन आप एक एग्जांपल के तौर पे एक साबुन भी आप खरीदते हो, उसके पीछे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपको 1 रुपए का इनकम भी आता है, उसके पीछे भी टीडीएस देना पड़ेगा। कुल मिलाकर 100% लीगल ये काम बनता है। और सबसे बड़ा चीज है सर कि इसको करना क्यों है, बहुत सारी पॉइंट, लेकिन अब हम स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपका जरूर नेक्स्ट सवाल जरूर लेना चाहेंगे। जी सर।
तो होप सो कि अभी हम लोग थोड़ा सा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, बताने की कोशिश की आपके सामने। जी सर। हाँ नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा पूरा मॉडल बताया। लाइक इसी में अब सब्सिक्वेंट जैसे, सो लाइक व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, आपने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। लाइक ओके, फैक्ट्री टू दैट, व्हाट इज द काइंड ऑफ मार्केट साइज कंट्री का, लाइक हाउ डज इंडिया स्टैक अप। जैसे यूएस में विद अ लेस पॉपुलेशन ह्यूज टर्नओवर इज देयर, सो व्हाट इज द जी अपॉर्चुनिटी फॉर लाइक अ स्टूडेंट और मे बी लाइक उसके लिए हाउ दिस इज अ कैरियर पाथ पे, थोड़ा उस पर आप डिस्कशन कर देते हैं। जी जी जी। Yeah, suppose I have अम, or somebody has to like some, I have like any student who will watch this video, उसके हाँ हाँ बाद they want to like get involved, they want to take it up as a career or maybe as a side. So what is the roadmap for that? हाँ। क्या इनका डायरेक्ट पोटेंशियल सेलिंग, है? जैसे हाँ हाँ, they become a member of डायरेक्ट your सेलिंग, company, फिर वहां से उनको स्टॉक मिलेगा। जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया ना, मैन्युफैक्चरर बीच में इतनी सारी चेन्स हैं, मिडल मैन है, उसी तरीके से मान लीजिए जब किसी को शुरू करना है तो उसमें वो जी जी जी। कैसे ज्वाइन करेगा, उसमें क्या उसके लिए जैसे वेलकम पैक होता है, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो ना, तो उसी तरीके से हम्म। इसका वेलकम पैक क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग सब का? ठीक है। सबसे पहले, उससे पहले हम एक चीज जानते हैं, व्हाई एनी कंपनी बिकम योर गुड चॉइस। सिलेक्शन ऑफ कंपनी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 300 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो लीगल है वो अभी रन कर रहा है, 300 से ज्यादा है। अब कौन अच्छा है कौन बुरा है हमें कैसे पता लगेगा? कुछ मापदंड है, उस चीज को समझना है। सबसे पहले कोई भी कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले हमें क्या देखना होता है? मैनेजमेंट, चलाने वाला कौन है। जैसे एक हमारा पूरा बॉडी है, बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट अंग बोले तो हमारा ब्रेन है। यदि मेरा हाथ नहीं काम करेगा, पैर नहीं काम करेगा, तो हो सकता है घर वाले रखें, हैंडीकैप हो भी जाए तो घर वाले रखेंगे। लेकिन हम दिमाग से यदि पागल हो जाए तो हो सकता है घर वाले भी नहीं रखें, वो हमें पागल खाना ही जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज क्या है कि स्टेबिलिटी पता लगता है मैनेजमेंट से। आपका मैनेजमेंट कौन है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता भी है या नहीं है, कि पैसे के दम पे इस इंडस्ट्री को शुरू कर दिया। तो यानी कि मैनेजमेंट देखना जरूरी है। कम से कम इस टाइम में हम, क्योंकि रिस्क ले नहीं सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें देखना होगा क्या 10 साल से ऊपर, 10 साल से ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन चलते हुए इंडिया में हुआ है या नहीं है। इंडिया के अलावा क्या उसका 10 साल में इंडिया के अलावा बाहर के देशों में है या नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस हमारा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वाइड मार्केट साइज के लिए है। तो हम अपने सिर्फ एरिया में नहीं, हम बाहर के एरिया में है या नहीं है। तो यानी कि अनुभव सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, और बाहर के कंट्री में। इससे पता क्या लगता है? फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, विजन कंपनी कितना बड़ा है, क्या वो दुनिया के कंपनियों को बीट कर सकता है कि नहीं। उस इससे क्या पता लगता है कि उसका सोच कैसा है। तो पहला चीज क्या देखना है? मैनेजमेंट। दूसरा क्या देखना है सर? प्रोडक्ट, क्या वो हमारे प्रोडक्ट हमारे लिए है भी या नहीं, कि यूं ही है लेना पड़ेगा, ज्वाइन कर लिया तो मजबूरी है, किट सिस्टम में ज्वाइन किया तो लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। तो उनके पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है। सबसे बड़ा चीज है कि क्या वो पर्सनल केयर में काम करता है, क्योंकि पर्सनल केयर मेरे को जरूरत है। आज देखा जाए तो हम आजीवन स्वस्थ रहना चाहता है, तो क्या वेलनेस में है या नहीं है। हम चाहते हैं मेरी मम्मी भी स्वस्थ रहे, पापा भी स्वस्थ रहे, हम भी स्वस्थ रहे, यानी कि जब तक जिए तब तक आजीवन स्वस्थ रहे। तो क्या उस रेंज को कवर करता है या नहीं करता है। आज बात करें तो आज कॉस्मेटिक रेंज आप देखे होंगे, कोविड के टाइम में कुछ बिके न बिके, लेकिन कॉस्मेटिक सेगमेंट बड़ा आगे बढ़ते रहा, क्योंकि वो चीज खत्म नहीं किया जा सकता ओबियसली, कि तो उसमें है या नहीं है। और कॉस्मेटिक में भी ऑर्गेनिक की तरफ, क्योंकि अभी केमिकल से लोग दूर जा रहे हैं, ऑर्गेनिक की तरफ रुझान है, तो उनका प्रोडक्ट सारे चीज हमें देखना होगा। तो एग्रीकल्चर, एक इंडिया की बात करें तो हम एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा सेक्टर है, हमारे पास 60% लैंड एक्वायर किया हुआ एग्रीकल्चर का ही। तो सब कुछ देखना पड़ेगा हमें। हम मेट्रो में रहते हैं तो मेट्रो के साथ किस तरीके से हो सकता है, हम गांव में रहते हैं तो किस, तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है या नहीं। तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तीसरा होता है प्लान। प्लान जो इसका है उसमें कोई स्टेबिलिटी तो, स्टेगनेंसी तो नहीं है, अटकना तो नहीं है यार, एक स्तर तक तो कमा लेंगे उसके बाद नहीं कमाएंगे। तो इसको हम देख कैसे सकते हैं? पास्ट देखकर। हमेशा याद रखना है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पास्ट क्या है। तो सबसे पहले देखना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा टॉप अर्नर डायरेक्ट सेलिंग से है कौन। इस आसान बनता है, यदि है तो मेरे लिए अच्छा है। हम देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन, हाँ यदि 2 4 5 साल पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन आया तो ऑब्वियसली
तो उसी से कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा ये है। क्या वहां पर वैसे भी लोग कामयाब है जो फिजिकली डिसेबल है? कहने का क्या मतलब है कि ये सबके लिए होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग या दूसरे शब्दों में बोले नेटवर्क मार्केटिंग वो चीज होता है जो आसानी से कॉपी किया जा सके, हम कर सकते हैं। तो मेरे साथ वैसा भी बंदा कर सकता है जो केपेबल ऐसे देखने में नहीं है लेकिन वो भी कर सकता है। तो बता, वो सारी चीजें देखना पड़ेगा। प्लान की बात हो गई। दूसरी तीसरा बात क्या देखना है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में है तो आपको राजस्थान में नहीं है, कोरियर करना पड़ेगा, पंजाब में नहीं है, देखना पड़ेगा केरला में कैसे पहुंचाएंगे। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रोडक्ट बेहतर होने के बाद भी कंपनी फ्लॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना होगा। क्या उनका प्रोडक्ट उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है या नहीं, उनका खुद का है या कहीं से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अनस्टेबल होगा, तो उनका कुछ है या नहीं है। तो यदि है तो बेस्ट है। उसके बाद सर क्या होता है कि आप एजुकेटेड हो, आप पहले से जानते हो, आप मार्केटिंग पीपल हो या सारी चीजें आप जानते हो, लेकिन मेरे दोस्त नहीं है, तो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है या नहीं है। एजुकेशन सिस्टम से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी अलग अलग देखा जाए तो फील्ड के आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या एजुकेशन सिस्टम है, इनका ट्रेनिंग सिस्टम क्या है। तो ट्रेनिंग क्या स्टेप वाइज है, इनिशियल मतलब कोई शुरुआती लोग आते हैं तो उनके लिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो है या नहीं है। यदि ये सारी चीजें है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना चाहिए। सबसे पहला चीज है। अब है कि जाने के बाद करना क्या है। पहली बात, जिस कंपनी में रीपर्चेज नहीं है, जिस प्रोडक्ट के साथ रीपर्चेज नहीं है, इसका मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, टर्नओवर बार बार नहीं क्रिएट कर सकते। तो हमें वो चीज चाहिए जो इजिली कंज्यूमेबल हो, जिसको हम कंज्यूम कर सके और हम रेडी टू परचेज है, तैयार रहे परचेज करने के लिए कि हाँ जी वो चीज तो खत्म हो चुका है, तो वो चीज होना चाहिए। तो बहुत सारा ये चीज है कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, यहाँ मनी रोटेशन चलाते हैं, स्कैंडल स्कैम टाइप आता है जो कि पैसे को घुमाया जाता है, 100 का चीज 1000 या 1500 या इस तरीके से बेचा जा रहा है। तो वन ऑफ वहां पर बोलते हैं प्रोडक्ट, लेकिन वन ऑफ द वन बोल सकते हैं वन ऑफ द टाइप ऑफ आप ये मनी रोटेशन है कि प्रोडक्ट कहने का है, एक्चुअल प्रोडक्ट है नहीं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो जो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आपको करने के लिए क्या है, जो हम सर क्या नाम ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, इफ यू अलाउ मी, कि किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है नहीं है, क्या आप बोलोगे? उसमें तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, बताइए आप। मेरा देखें अभी ना तक इसमें वही एक मैं जो अभी जैसे मैं आपसे जो क्वेश्चंस पुट अप कर रहा हूँ, दीज आर बेसिकली आई एम रिप्रेजेंटिंग 4 to 5 लाख स्टूडेंट्स, और उसमें भी 4 और 5 लाख स्टूडेंट्स में भी बड़ी सारी सेगमेंट है। कुछ स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर चले जाते हैं, कुछ को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कुछ को प्राइवेट में जाना है, कुछ का फैमिली बिजनेस है। तो लेकिन ये सब जो उसमें ये एक साइड इनकम के तौर पे पैसिव इनकम, दिस इज फॉर एवरीवन। तो जो मैं इसमें एक अच्छी चीज है, इट इज नॉट फॉर इट कैन बी डन अलोंग विद समथिंग व्हिच आई एम ऑलरेडी डूइंग, या मैं इसको फुल टाइम है। तो वही मैं अभी जैसे आप अच्छा बता रहे थे, तो अब मैं यही इसमें जानना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो अब जो शायद आप बताना भी चाह रहे थे आगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मतलब हाउ डज इट स्टार्ट, आप उसी सेगमेंट को शायद कवर कर रहे थे। हाँ हाँ सर हाँ, थोड़ा सा अपने आप को इसीलिए कंट्रोल भी रखा था कि अदर, क्योंकि ये हो सकता है कि ये आपका रिकॉर्डिंग सेशन है, ये सारी चीजें, तो क्योंकि क्या होता है सर कि इसमें इसलिए कॉमन चीज बात करने की कोशिश कर रहा था कि क्या जरूरी है क्या नहीं। हाँ हाँ, अब कौन बात सा विवेक जी, बताइए। हाँ 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 जी बोलिए। कौन सा? इसमें जैसे विवेक जी ने ये सारी बातें बताई थी, उसको ना एक और स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले थे 2016 के अंदर, उन्होंने अब उसको अमेंडमेंट करके 2021 के अंदर उसको और पूरा ऑर्गेनाइज्ड करा दिया। तो नाउ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैज बिकम एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इट्स नॉट अनऑर्गेनाइज्ड। तो उसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो कुछ सेटअप कर दिए, कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जिसकी वजह से जो मनी रोटेशन की बात हो रही थी, और जो दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी तो अपने आप ही उनकी जो दुकानें थी वो बंद हो चुकी है। सो नाउ देयर विल बी ओनली दोज कंपनीज विल रिमेन देयर विच आर रीजनेबली वेल, इथिकली अच्छा काम कर रहे हैं, और जो विवेक जी बता रहे थे कि उनका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे कंट्री के अंदर है, बाहर की कंट्री में भी है, तो वो they will remain there, they have to remain there because of their own deeds। जी विवेक जी। जी
तो एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये भी एग्जाम्पल के तौर पे ही ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में लगभग 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, उसके साथ एक बंदा रहता है, जीरो से कई करोड़ तक पहुंचाने का अनुभव है, सोच मैच नहीं करता है, कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज देखा जो उनके अकॉर्डिंग नहीं था। हो सकता है कि वो चीज लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो चीज पास ऑन नहीं हो रहा था। तो 2004 2 जून 2004 को वेस्टीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडर मेंबर गौतम बाली, जो जिनका पास्ट बैकग्राउंड की बात करें तो फाइजर कंपनी में उन्होंने लगभग 12 साल का समय दिया। एल्केन एक मलेशिया का ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें वो सीईओ के पद पे रहे, और एक मोदी केयर ग्रुप है उसके साथ भी एसोसिएट रहे, जीरो से कई करोड़ तक पहुंचाया। जो वो चाहते थे वो एज इट इज डिलीवर होते हुए नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कब तक दूसरे पे उंगली उठाया जाएगा, क्यों ना अपने पे उंगली उठाकर इस स्टेप को लिया जाए। लेकिन जब जिस वक्त वो ले रहे थे उस वक्त उनका फाइनेंशियल उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो वो अपने दो एक्सपीरियंस्ड दोस्त के साथ, जिनका नाम है कन्वर वीर सिंह और दीपक सूद, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी में वो ऑलरेडी एसोसिएटेड थे, बड़े पद पे काम कर रहे थे, तो तीनों मिलकर 2 जून 2004 में वेस्टीज का निर्माण किया। उस वक्त वेस्टीज के पास बहुत कुछ नहीं था, मात्र 6 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चीजें शुरू हुआ, 6 डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास थे। उसके बाद उनके पास 2 किराए के दिल्ली और बेंगलोर में इन्होंने ऑफिस शुरू किया। उसके बाद उनके पास जो प्रोडक्ट रेंज था उस समय 6 से 10 प्रोडक्ट रेंज उस वक्त था इनके पास, उनके पास कुछ लगभग नहीं था, लेकिन सोच बड़ा था कि यार हम लोगों को मदद करेंगे ऐसे जीवन के लिए जिसमें वो ना सिर्फ आर्थिक रूप से आजाद हो बल्कि अपने शर्तों पे जीवन जी सके। ये सोच था कि यार स्वस्थ भारत समृद्ध भारत बनाना है, और इस सोच के साथ आगे बढ़ते रहे। पहला साल का सर टर्नओवर मात्र 5 करोड़ का था, लेकिन उस वक्त बड़ा था क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था 5 करोड़ का। उसके बाद 10 करोड़ हुआ, 15, 17, 20, इस तरीके से ग्रो करते रहा वेस्टीज। अभी लगभग 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 3500 करोड़, यानी कि 3000 से 3500, एग्जैक्ट डाटा अभी मेरे को रिमेंबर नहीं है क्या है, लेकिन अब 3500 करोड़ का है। 2017 में हम बन गए इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमसे पहले ओबियसली एक ऑर्गेनाइजेशन था एमवे, कॉमन प्लेटफॉर्म है, वो लगातार एमवे दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और बोल सकते हैं मदर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ओबियसली बहुत कुछ सीखा है उस सारी चीजों से, सारी कंपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो 1850 करोड़ करके 2017 में इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बना। लगातार ग्रोथ, वेस्टीज का हिस्ट्री ये बताता है कि 18 साल से अभी तक वेस्टीज कभी डी ग्रोथ नहीं किया, लगातार हर साल दर साल ग्रो किया, क्योंकि इनका कंपटीशन अपने आप से है। कभी भी निगेटिविटी कैंपेन नहीं किया, इसीलिए मेरे मुंह से कभी भी दूसरे कंपनी के लेकर बुराई नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो कभी भी क्या है कि दूसरे का लाइन नहीं काटना है, अपने लाइन को ही बड़ा करना है। आप में जो है आपका कंपटीशन अपने आप से, ओबियसली आप अपने आप को बीट करो। तो वेस्टीज कभी भी डाउनफॉल नहीं हुआ। आज की डेट में बात करें तो लगभग 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर बेस है, 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बेस है। आज जो इनके 2 ऑफिस हुआ करता था किराए का, आज हमारे पास अपना 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस है। आज हम बात करें जो डीएलसीपी की, जिसमें हमारा सेंटर पॉइंट है, लगभग 3500 से 4000 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पॉइंट है, जहां पर ट्रेनिंग सिस्टम है, जहां पर आपके प्रोडक्ट मिलते हैं, बैठने का सुविधा है, सारी चीजें। लगभग 3500 से 4000 छोटे छोटे जगह से लेकर बड़े बड़े जगह, हर जगह आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पॉइंट। आज इंडिया के अलावा लगभग हम 10 देशों में हैं, इंडिया के अलावा लगभग हम 10 देशों में हैं। वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून इन 20 कंट्री टिल 2025 तक हम लोग लगभग इतना करने वाले हैं। और अभी हम बात करें तो वेस्टीज के पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट में इनके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो लगभग 75 से 80% प्रोडक्ट वेस्टीज के अपने बनते हैं। कुछ प्रोडक्ट में आपका एक आता है शार्प का, शार्प आपने सुना होगा, जापान का एक प्रोडक्ट है शार्प का एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, सिर्फ वेस्टीज के लिए वो मॉडल दिया जाता है, तो वो भी हमारे पास है। लेकिन 80% प्रोडक्ट वेस्टीज के लगभग हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनते हैं। यहाँ पर वैसे वैसे लोग सर कामयाब हैं, आप सुनकर दंग रहोगे। हम भी जब इस बिजनेस में आए
तो बड़ा दंग रहा कि डीफ एंड डम, जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, वो भी लाखों का इनकम कमाते हैं। जो बिल्कुल आंखों से देख नहीं सकते, वो 4 से 5 लाख रुपए यहाँ कमा रहे हैं। वैसे लोग हैं जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, वैसे लोग भी बहुत कामयाब हैं। वैसे स्टूडेंट भी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, जो रामजस कॉलेज के एक स्टूडेंट है, और शायद आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा, बड़ा फेमस नाम है उसका। वो यहाँ से लगभग 10 लाख से ऊपर का इनकम है उसका। यानी कि बोल सकते हैं, उसका एक कहना है कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए, किसी के पति बनने से पहले करोड़पति बन जाओ। तो जो पॉसिबल करके दिखा दिया। वो बोलते नहीं है कि स्टूडेंट, और जो बड़ा एनर्जेटिक वो बंदा, तो उसके पास टीम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ही हैं, सारी चीजें। लेकिन कॉमन प्लेटफॉर्म है, वेस्टीज का कॉमन प्लेटफॉर्म है, कॉमन ट्रेनिंग है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस तरीके से सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो 300 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट रेंज, आप जिस कैटेगरी में चाहोगे उस कैटेगरी के रेंज मिलेगा। प्रोडक्ट हाई क्वालिटी, क्योंकि जीएमपी सर्टिफाइड है, एफडीए सर्टिफाइड है, यूएस एफडीए कुछ प्रोडक्ट है अप्रूव्ड है, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा हम बात करें तो हट्सा हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन के परमानेंट मेंबर है, फिक्की के परमानेंट मेंबर है। आप बात करें तो लगातार बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर लगातार इसको अवार्ड मिला हुआ है। क्वालिटी वाइज देखा जाए तो नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन है। बेस्ट प्लेस टू वर्क लगातार 18, 19, 20 बेस्ट प्लेस टू वर्क को उसका अवार्ड लगातार वेस्टीज को मिलते रहा है। और हम दुनिया का इकलौता इंडियन कंपनी है, दुनिया का इकलौता इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में है, जो आप गूगल कर सकते हो। आप गूगल करना टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, तो आपको इसी का नाम मिलेगा। अभी 38वां पोजीशन पे है। तो लगातार ग्रोथ ये अपने आप में दर्शाता है। इस कोविड के दौरान भी इनका सेल लगातार बढ़ते रहा, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है। यदि हम जा नहीं पाते हैं तो घर बैठे भी इस चीज को कर सकते हैं। महिलाओं की बात करें तो वेस्टीज में 30 से 40% महिलाएं, ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग में 50% से ऊपर है महिलाएं, जो एक्टिवली इसमें बहुत आगे बढ़ी हुई हैं। लेकिन महिलाएं वेस्टीज में 30 to 40% ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ज्यादा कामयाब है। 40 लाख एक महिला है जिनका नाम है दीपाली पटरीवाला। 40 लाख प्लस पर मंथ का उनका अर्निंग है, लगातार बढ़ता है। जिस इस मंथ पर मंथ बोल नहीं सकते कि इस मंथ है टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली एक बिजनेस है तो लोग बढ़ेंगे, टर्नओवर बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ जाएगा। तो लेकिन एक एवरेज इनकम की बात करें तो 40 लाख प्लस है। यहाँ टॉप अर्नर 1 करोड़ से ज्यादा हर महीने लगातार बढ़ रहे हैं, जिनका नाम है सिद्धार्थ सिंह। गूगल कर सकते हैं एशिया टॉप अर्नर इन डायरेक्ट सेलिंग। आप गूगल कर सकते हैं मेरा वर्ड एशिया टॉप, तो आप उनका नाम आप देख सकते हैं। टॉप अर्नर वेस्टीज में ही है। लेकिन वेस्टीज इंडिया का सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसी में वही मेरा लाइक हाउ टू स्टार्ट इट। जैसे ये एवरीथिंग इज फाइन, आपने सब कुछ बताया। सपोज अभी जैसे किसी को कल से शुरू करना है, अभी किसी ने आज आपका वीडियो देखा एंड दे वांट टू जॉइन वेस्टीज फ्रॉम टुमारो, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जैसे मान लीजिए मैं किसी गुड़गांव की कंपनी को ज्वाइन करता हूँ, तो मैं कंपनी में गया, वहां पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की, ज्वाइनिंग फॉर्म भरे, पीएफ जो भी दुनिया भर के होते हैं। उसके बाद मेरा बैंक अकाउंट खुलेगा, फिर मुझे एक बडी असाइन होगा, बडी मेरे साथ रहेगा 1 महीना, वो मुझे बताएगा ये आपने करना है। उसके बाद मेरी सैलरी आनी शुरू होगी। तो दैट इज, जैसे हर महीने मेरी सैलरी आ रही है, 6 महीने बाद अप्रेजल होगा, साल भर बाद कंफर्मेशन होगी, कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो इसमें व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू परचेज समथिंग, उसके बाद मैंने अपने लोकल एरिया में लोगों से कांटेक्ट करके उसके बारे में बता के उसको बेचना है। सो व्हाट इज द मॉडल, व्हाट आई हैव टू डू? ठीक है, इस चीज को पहले समझना है कि हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, वेस्टीज में, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी सरकार से एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो लीगल तरीके जो आपका गवर्नमेंट का आईडी कार्ड है, जैसे कि आधार कार्ड, उसके अलावा आप वोटर आईडी कार्ड जो आपके पास है, उसके माध्यम से आप वेस्टीज को रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन 1 रुपया भी नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डायरेक्ट वेस्टीज में एसोसिएट बन गए। रजिस्ट्रेशन कैसे? मुझे वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन करना है या मुझे किसी से कांटेक्ट करना है? जो जैसे अभी राजकौल सर है, एग्जाम्पल के तौर पे राजकौल सर है, तो राजकौल सर के माध्यम से, क्योंकि अभी डायरेक्ट राजकौल सर आपके कांटेक्ट में है, तो राजकौल सर आपके इमीडिएट स्पॉन्सर हो जाएंगे, जो इनके माध्यम से आपको एक रेफरेंस दिया जाएगा और उस रेफरेंस के माध्यम से आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा वेस्टीज में, राजकौल सर के साथ में। ठीक है सर। उसके आधार कार्ड से आपने ज्वाइन कर लिया।
आपका पैन कार्ड जरूरी है तो पैन कार्ड आपको उसमें अटैच कर लेना होगा, वो ऑप्शन होगा उसमें। बैंक डिटेल में आप अपना कैंसिल चेक दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं और उसके साथ आपको अटैच कर दिया जाएगा। हर महीने जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे तो उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना, अपनी जरूरत का जो आपका नीड है, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर का नीड क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी की बात करें तो मेरे घर में चाय खत्म हो रहा है, तो हम एक चाय पत्ती ले सकते हैं, टूथपेस्ट ले सकते हैं, साबुन ले सकते हैं, डिश वॉश ले सकते हैं, या हम जो हमारा नीड है उस अकॉर्डिंग हमने एक बना लिया। कितने का बना लिया, मिनिमम का देखा जाए तो मिनिमम का कंडीशन है, मैक्सिमम का कोई कंडीशन नहीं है। वो तो आपके नीड के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे घर का 1000 में बात बन जाता है तो 1000 का ठीक है, मेरे किसी के घर में 10,000 का चल रहा है तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन शुरू करने के लिए, वेस्टीज में शुरू करने के लिए जो मेरा कहना होता है, एक ऑफर चलता है जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंसी ऑफर क्या कहता है कि वेस्टीज में आप आइए और एक मेरे ऑफर है कंसिस्टेंसी ऑफर, जो बोलता है कि 3000 से 3500 का, हालांकि आप 1000 से भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी क्यों है, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स अलग है। यदि आप 3000 से 3500 का मेरे यहां से गुड्स लेंगे, लगभग आपका बन जाता है 100 पॉइंट वैल्यू, यानी कि 100 पॉइंट वैल्यू 3500 का सामान लेने पे जो बन रहा है। यदि हम लगातार 4 महीना 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में लेते हैं, पहला महीना कभी भी शुरू हो सकता है, दूसरा महीने यानी जब भी हम रीपर्चेज करेंगे तो 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में लगातार 4 महीने यदि हम लेते हैं, तो जो आप 3500 का सामान ले रहे हो उसके उसके अगेंस्ट में आपको एमआरपी वाइज लगभग 4000 का प्रोडक्ट मिलेगा। 3500 का जो आपने पैसा दिया, 4000 एमआरपी का आप सामान ले सकते हो, वो मिल गया। उसके अलावा लगभग 300 का अलग से आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेगा, जो आपने लिया उसको ले लिया। तीसरा चीज क्या है, आप करो या ना करो बिजनेस, हम किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन आपको 90 रुपए कम से कम 100 पॉइंट वैल्यू के अगेंस्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 90 रुपए कैशबैक आपका। चौथा चीज क्या होता है कि यदि हम लगातार 4 महीने 100 पॉइंट वैल्यू लिए, तो 5th मंथ में आपको एक वाउचर मिलेगा 2500 का, जो आप अपने मन मर्जी का जो भी चाहे वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। लगभग 2500 का जो वाउचर है उसका एमआरपी बनेगा 2800 से 3000 के करीब, अपने मर्जी का आप उठा सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे ये 3500 का प्रोडक्ट 4 महीने, तो आपको ये प्रोडक्ट पड़ जाएगा 50% डिस्काउंट रेट पे। आप ओवरऑल बेनिफिट्स जोड़ेंगे तो लगभग 50% तक पड़ेगा। पहला तो एज ए कंज्यूमर हम चाहते क्या है, पहला चीज कंज्यूमर के रूप में हम चाहते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, जो वो पहले दिन से मिलना शुरू हो गया। दूसरा क्या चाहते हैं कि हम मेहनत से कमाते हैं तो हमारा पैसा वेस्ट ना हो, तो एफोर्डेबल रेट हो। रेट क्या हो, मार्केट का, जैसे वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता तो हमें मार्केट में यही क्वालिटी का प्रोडक्ट उसी रेट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब वो दोनों मैच ऑन होना चाहिए। यदि मैच ऑन हो रहा है यानी क्वालिटी प्लस रेट, तो आपका शुरू, अभी हम कोई भी बिजनेस शुरू नहीं किया, अभी कंज्यूमर है, अभी हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर है। तो अभी तक हम कंज्यूमर के नाते हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सेविंग, क्वालिटी प्रोडक्ट और सेविंग हो गया। अब मुझे अच्छा लगा इस चीज को, तो अब ने हम क्या किया, ऑर्गेनाइज वे में मेक ए लिस्ट बना दिया, लिस्ट बना लिया, मेक ए लिस्ट। तो जिसको भी हम जानते हैं उसका हमने लिस्ट बनाया, जो भी आप जानते हो। तो एक बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज वे क्या कहता है, हमें 3 प्रकार का लिस्ट बनाना है, जिसको बोलते हैं हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। यानी कि जो मेरे बहुत खासम खास है, सिर्फ हम बोलेंगे वो तैयार बैठा हुआ है, यानी वो मेरे पे इतना ट्रस्ट करता है, वो बड़ा गिनती के होते हैं, 2 4 5 ही होते हैं जो मौके पे मेरे साथ खड़े होते हैं, उनका हमने नाम लिख लिया। क्योंकि शुरू में हम बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे साथ साथ में रहेंगे। उसके बाद क्या है, दूसरा कोल्ड लिस्ट, जिसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हाँ, वो भी जानते हैं और मानते हैं, लेकिन उनको बताएंगे तो ही समझ पाएंगे इस बात को। तो दूसरा लिस्ट कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट का। और तीसरा जो हमारे दूर के दोस्त, जिसको हम ओकेजनली याद करते हैं, या वो स्ट्रेंजर जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन यदि उनको हम प्रेजेंट करें तो वो मेरी बात पे एग्री हो सकते हैं। तीसरा होगा कोल्ड लिस्ट। तो लिस्ट जैसे ही तैयार होता है, हम उनको ये चीज ऑफर के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, उनको गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, और
देखा जाए तो खुद ट्रेंड होना है और ट्रेंड करना है। बी लीडर एंड बिल्ड लीडर। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जोड़ना नहीं है, सिलेक्ट करना है। दूसरी बात है कि जैसे आपने एक चीज पूछा कि क्या स्किल चाहिए, क्या स्किल चाहिए कोई भी एसोसिएट को इसमें आने के लिए। सबसे पहला चीज क्या है कि सच में वो चाहता है इस माध्यम से आगे बढ़ना या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर फील करके उसको हम ज्वाइन कराए, कभी भी वो चीज करना नहीं। हम समझाए हैं, हमने अपनी बातें रखा है, अपनी बातें रखा है, उस पर जरूर छोड़ेंगे कि वो डिसीजन ले पाता है या नहीं ले पाता है। प्रेशर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि वो ज्वाइन सर करता है तो इस, इसी में क्वेश्चन, क्योंकि वही मैंने कहा ना, जैसे ओरिएंटेशन सेशन है, विल डू फॉलोअप सेशंस आल्सो। अब मान लीजिए जी जैसे जी सर। आपने मुझे बताया, तो 4 महीने मुझे रेगुलरली 3,000 या 3,500 के आइटम्स लेने हैं, जो कंसिस्टेंसी जी प्लान आपने बताया। आई कैन टेक इट लेस हाँ ऑल्सो। उसमें जो मुझे हाँ रेंज सर। मिलेगी कंसिस्टेंसी में, वो प्री डिफाइंड है कि इतने उसमें हेल्थ एंड वेलनेस के होंगे, इतने उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे, वो नहीं सर, कैटलॉग उसमें फिक्स्ड है। अच्छा, दूसरी चीज, नहीं मान सर। लीजिए मैंने ले लिया किट, मैंने पहला किट ले लिया 3500 का। अब मैं उसको मुझे सेल करना है। तो जैसे मान लीजिए आपने बताया कि इतने का एमआरपी वैल्यू मुझे मुझे मिलेगा जो मैंने किट लिया। तो मैंने कल 2 स्टूडेंट्स को अपना वो बेचा, एक पेन बेचा या चाय पत्ती बेची। तो वो जो उसको मैं किस प्राइस पे बेचूंगा? वो प्राइस डिफाइंड है कि ठीक है आपने तो हाँ, 3500 का लिया, तो ये कंपनी से रेगुलेटेड है, इससे ऊपर आप नहीं बेचोगे एथिक्स के बेस पे। और फिर चलो वो मेरे अकाउंट में मार्जिन आएगा कैसे? क्या मैं कैश देखिए, ट्रांजैक्शन करूंगा? मैंने किट इसको ले ली, लेकर मेरे सर घर हम पे किट आ गई, अब उस किट के इसको बाद लेकर ट्रांजैक्शन कैसे होगी? हाँ, हाँ, इसका हम बारीकी जो है ना, पैसा के कैलकुलेशन या सारी चीजें हम लोग एक सेपरेट मीटिंग में जरूर करेंगे, क्योंकि ये सारा मीटिंग क्या होगा, बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो इसको हम सेपरेट करेंगे। लेकिन एक सवाल जो आपने एक बोला कि सेल करना है नहीं करना है, सेल सेल जो करना है ना, ये आपका पर्सनल चॉइस है। जो भी आपको लेना है वो कंज्यूम करना है। क्योंकि क्या होता है सर कि आज हम सेल करने जो बोलते नहीं है कि यहाँ पर किसी को कन्विंस नहीं करना है, अवेयर करना है। कन्विंस वहां होता है जिसको जो चाहिए नहीं उसको हम दे रहे हैं कन्विंस करके, यानी नहीं, गंजे आप को सब कंगी कुछ ठीक बेच है। रहे हैं। नहीं, इसमें अगेन, हाँ क्योंकि वही है, आई हैव टू फॉलो दैट लिमिट आल्सो। लेकिन मैं जो इसमें मैसेज देना चाह रहा हूँ ना स्टूडेंट्स को, नहीं तो ये यहाँ पे बीच में ही रह जाएगी। आपने सारी अच्छा चीजें अच्छा। बता दी, मैं आपका पॉइंट समझ गया, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लेकिन उनको हाँ एक हाँ। पूरा मैसेज मिल जाए कि इसमें क्या मॉडल क्या है। जैसे मैंने 35 की किट ली, मैंने अभी जुलाई में ले ली आपसे। अब वो मैंने खुद कंज्यूम करनी है, या उसको मैं जैसे किसी को देना चाहूँ, सेल को भी हम हटा देते हैं। मेरे पास 2 देखो। स्टूडेंट आए, मुझे चाय पत्ती चाहिए। मैंने कहा तुम हाँ हाँ। मार्केट में जाओगे, वहां पे इतने की मिलेगी, 100 रुपए की, मैं आपको 95 या 80 रुपीज की दे रहा हूँ। इज दैट द मॉडल? देखिए, तो वो मुझे 80 आप रुपीज कैश देगा, वो मुझे पेटीएम एक से चीज पेमेंट करेगा? क्या मॉडल है? एक एक चीज समझना है। प्राइस जो होगा, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का प्राइस होता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का प्राइस तो वही होगा। ठीक है सर। लेकिन जो पैसा कंज्यूमर के माध्यम से ये सारे मिडिल मैन को चला जाता है, आपको एक तरह से रिटर्न मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने कोई चाय पत्ती ही ले लिया, चाय पत्ती वो आपका मर्जी है कि आप जिस रेट में लिए सेम रेट में आप पास ऑन करो, या आप उसके एमआरपी पे दे सकते हो, वो आपका मर्जी है। वो उसमें कंपनी का कोई भी इंटरप्शन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि एक चाय पत्ती 250 ग्राम का लगभग 150 रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पे 150 रुपए का आपने दे दिया, वो आपको हो सकता है 140 का पड़ा, तो उससे कुछ कंपनी का नहीं। या 140 का आप एज इट इज आपने डिलीवर कर दिया तो भी कोई बात नहीं है। उसके अगेंस्ट में जो पॉइंट वैल्यू मिलेगा, उस अगेंस्ट उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस निकाला जाता है, पॉइंट वैल्यू निकाला। और ये चीज समझना है, शुरुआती रिजल्ट हर चीज का छोटा होगा। बोलते नहीं है कि बोलते हैं कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। हमें पहला कदम लेना होगा, 1000 किलोमीटर जाना है तो यहाँ पर भी शुरुआती रिजल्ट बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि हम ही क्या कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं। तो मेरा टर्नओवर फॉर एग्जांपल 1000 का सामान लिए, 1000 का टर्नओवर। मेरे साथ 10 लोग आए, 1000 का सामान लिए, 10,000 का टर्नओवर। 10 लोग 10 तक तो वो किए तो लगभग 100 लोग हो गए, 1000 का सामान लिया तो 1 लाख का टर्नओवर। जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा लेवल जंप होगा, लेवल बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। वेस्टीज में जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपको अलग अलग पे आउट सिस्टम मिलना शुरू होता है। उस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पे आउट मिलना शुरू हो जाता है। एक चीज सर याद रखना है कोई भी चीज में कि 1 रुपये में 100 पैसा है। 1 रुपये में यदि कोई
मतलब ये क्लेम कर रहा है कि नहीं हम 105 रुपए दे देंगे, पॉसिबल नहीं है। अब 100 रुपए में है, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, उसके बाद टैक्स वगैरह जो भी जा रहा है उसका एक कॉस्ट होता है आपके पास। तो कुल मिलाकर एक चीज समझना है इस बात को। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको मिसगाइड एक तरह से बोल सकते हैं, करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लालच के चक्कर में बोलते नहीं, रातों रात अमीर बनने का सोचते हैं, जो कि है ऐसा नहीं। एक कंप्लीट बिजनेस मॉड्यूल है जहां पर टर्नओवर से ही बड़ा बिजनेस बनता है। और टर्नओवर का सबसे बड़ा बोल सकते हैं कि जो मेन पॉइंट है ना, वो हम लोग हैं सर, कंज्यूमर है। मार्केट का सबसे बड़ा राजा कंज्यूमर है। यदि कंज्यूमर नहीं रहेगा, ओबियसली मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो हमने देखा भी एक शॉर्ट इंटरवल में कोरोना के टाइम में, कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो सर बिल्कुल खाली बैठे हुए थे, जो कि ऑफलाइन चला रहे हैं क्लासेस। दूसरी बात है कि यदि डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं जा रहा है, डॉक्टर खाली बैठे हुए, ओबियसली कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के हॉस्पिटल बना लो, यदि पेशेंट नहीं होगा तो आपका कैसे चलेगा। तो चलिए मेन इसमें वही कंज्यूमर है। एक सेकेंड, हाँ नहीं आपने अच्छा बताया विवेक जी, इसमें। हाँ हाँ विवेक जी, जी सर। सर कुछ हाँ जी सर सर, कुछ अलग चीज पूछना चाह रहे थे। सर जो हाँ पूछ जी रहे सर, हैं ना, वो जो आप पूछ बिल्कुल रहे हैं बोलें। वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट ही इज आस्किंग कि अगर इन्होंने कोई सामान खरीदा और वो सामान का जो वैल्यू है, एमआरपी और डीपी रेट, यानी एमआरपी उसका अलग है और डीपी रेट उसका अलग है, इन्होंने डीपी रेट पे खरीदा, तो वो ये कह रहे हैं कि क्या मैं इसको डीपी रेट पे बेचूं या क्या मैं इसको एमआरपी पे बेचूं, हमारा कोई मॉडल है क्या कंपनी का। सर हमारा कोई ऐसा मॉडल नहीं है, ये टोटली इट्स योर होल डिस्क्रिप्शन कि आप इसको एमआरपी पे बेच सकते हैं और अपना डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे भी बेच सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि सर जब हम इसको 100 पीवी यानी 300 जो विवेक जी बता रहे थे 3000 का सामान हम लेते हैं, हमको तो बेनिफिट मिल गया क्यों, हमको 100 पीवी मिल गया। तो इसको मैं अगर मैं कंटिन्यूटी में 4 मंथ्स तक ले जाता हूं तो मेरे को 50% का ऑलरेडी एक बेनिफिट मिल जाएगा कि आई विल गेट ऑन द 5th मंथ आई विल गेट फॉर 3000 रुपीज 3500 रुपीज मेरे को फ्री गुड्स मिल जाएंगे। तो 50 से लेके 52% तक मेरे को डिस्काउंट आ जाता है। तो ये मेरा होल डिस्क्रिप्शन है कि मैं इसको कैसे बेचूं। If I have to give it to someone, so I can give it on the DP rate, that's a distributor price, and I can give it to the MRP also. तो इसमें आपके डबल बेनिफिट है। डबल बेनिफिट कैसे हैं कि इफ आई एम एन एंटरप्रेन्योर और मैं बिजनेस ही करना चाह रहा हूं और मेरा कोई नोन टू है या मेरा कोई स्ट्रेंजर है, तो मैं दो तरह से फायदे में रह सकता हूँ। आई विल सेल इट ऑन एमआरपी, एक तो मुझे वो डिफरेंस मिल गया, दैट्स माई किटी, और मुझे जो 5-6 महीने में बेनिफिट हो रहा है वो भी मेरे पास आ जाता है, वो भी मेरे को मिल जाता है। सेकेंडली ये हो जाता है सर कि जो मुझे बैंक में जो मेरे पास कैश का जो कैशबैक आ जाता है वो भी मेरे को अलग से मिल जाता है। तो टोटली अगर इसको देखा जाए तो if I can sell it on the MRP basis and I can sell on the distributor price also, that's totally my discretion. But चलो इसमें कि फिर मैं वही दो चीजें हैं, इसमें वही दो जी चीजें, एक तो है कि मैं कुछ भी ना करूं, सेल ना करूं, मैं अपनी सेविंग कर रहा हूं। तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है मैं उसको एक सेव करके एक अपने लिए सेविंग जनरेट कर रहा हूं। तो मेरी सैलरी चाहे 10,000 है तो उसमें पहले 2,000 बच रहे थे, तो अब शायद उसमें 3,000 बच जाएंगे, मैंने अपना ही एक सेव एग्जैक्टली कर लिया। दूसरा मैं उसको एक सेलिंग पॉइंट ऐसा उसको लाइक फ्रेंचाइजी एज एन एंटरप्रेन्योर करना चाहूँ तो मैं वो भी ऑप्शन कर सकता हूँ। उसमें मान लीजिए मैंने अपने नेबर को दिया वो चाय पत्ती, तो उसने मुझे 200 रुपए दिए, तो मैं उसको कैश लूं कैसे लूं वो मेरा डिस्क्रिप्शन है, कंपनी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कोई चलिए ठीक इन्वॉल्वमेंट। है। इसमें लेकिन आगे जो थोड़ा मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जैसे अब चाय पत्ती है तो चाय पत्ती में मुझे कौन से ब्रांड मिलेंगे आपसे। अब आपने इसमें बोला कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चर, जैसे एक अग्नि चाय पत्ती है टाटा की, इतने जी सारे ब्रुक बॉन्ड वगैरह, तो जी आप जी वो जी सोर्स करके वो मुझे उसमें 3500 किट में एक चाय पत्ती मुझे ब्रुक बॉन्ड वो मिल गया, या मुझे कोई वेस्टीज का अपना ब्रांड है वो मिल गया, ठीक है ना। और मतलब इसमें वही कई चीजें निकलेंगी। अब जैसे मैं उसको डीपी पे बेचूं या मैं उसको जी एमआरपी बेचूं, अगर मैं एमआरपी बेचूं वो कहेगा मैं तो अमेजन से मंगवा ही रहा हूँ, मैं तो मार्केट से हम्म, जा ही रहा हूँ। क्योंकि आजकल एक हम्म, नया वर्ड आया रिवेंज बाइंग, मतलब ये मैं जी टीवी पे सुनता हूँ कि काफी टाइम से ऑनलाइन था। ऑनलाइन क्या है कि लोग बाग अब जाना चाहते हैं मार्केट में, और टच एंड फील वाला फैक्टर। तो अब जैसे आपका करेक्ट रिलायंस स्टोर है, वहां पे वीकली शॉपिंग के लिए गए,
तो अगर मैं उस पे एमआरपी तो मैं दे ही नहीं सकता। एमआरपी पे अगर मैं उसको दूंगा तो वो कहेगा व्हाट इज द बेनिफिट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू। बेनिफिट, मैं अभी एग्जैक्टली, यहाँ पे यस, वेरी, अमेजन के स्टोर पे जाता हूँ, वो घर पे मुझे आके देगा, मुझे वहां पे कैश बैक भी मिलेगा। आप देखो ना जी पेपर में जी इतनी सारी स्कीम है। तो आई एम जस्ट हेल्दी डिस्कशन में आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जी, जो आपसे बोला ना, स्टूडेंट्स आजकल बड़े अवेयर हैं, तो करेक्ट दे विल करेक्ट, डेफिनेटली पुट मी बैक सम क्वेश्चंस। तो मैं उन्हीं को यही बोल रहा जी हूँ कि डीपी पे तो, डीपी पे मैं बेचूंगा तो ठीक है, लॉन्ग टर्म जो मुझे 2500 का वाउचर मिलेगा, मैं अपने लिए सेविंग कर रहा हूँ। लेकिन डीपी जी, पे आई डोंट थिंक आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम सेविंग फॉर माई सेल्फ, बट आई एम हम्म, नॉट क्रिएटिंग अ बिजनेस। या इसमें यस, ये भी एक मॉडल हो सकता है कि मैंने इसमें 4 मेंबर बनवाए, 5, जैसे मैं हो गया, एक और हो गया, उससे कंपनी एग्जैक्टली, मुझे धीरे बिल्कुल, धीरे कि आपने इतने बिल्कुल, बनाए तो उसको यस, भी आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक सर, चीज था कि मैंने आपसे प्रोडक्ट लिए, उस प्रोडक्ट को अगर मैं बेचूं, तो वो मैं मॉडल जैसे समझने की कोशिश कर रहा था, जिसमें ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। अभी आपका है वो बेस्ट पता नहीं क्या क्या है कि आप उसको कॉल करो, फिर अभी ऐसे ऐसे ऑनलाइन ऐप हैं विद इन 30 मिनट डिलीवरी। आपको ब्रेड चाहिए, आपको चाय जी चाहिए, जी मतलब जैसे अभी मैं कई जैसे लोग लोग जो बात करते हैं कि आज सर्वेंट रखने की जरूरत नहीं है, जैसे नई जी नई जी, एप्स आ गई हैं, सर्वेंट को आपको फुल एग्जैक्टली, टाइम रखना पड़ेगा, आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी। अभी कुछ एप्स हैं, मुझे इतना ज्यादा नहीं, उसमें क्या आप फोन करो, ब्रेड, मक्खन, चाय, दूध, और मैंने अपनी आंखों जी से जी, देखा है, होता है विद इन 30 मिनट वो आपको घर पे डिलीवर कर जाएगा। तो वो बिल्कुल तो एक बिल्कुल फुल टाइम बिल्कुल नौकर रखने से बहुत अच्छा है। मेरी कोई हेडेक नहीं बिल्कुल, है, आया दे गया, और मान ली मेरी तबीयत खराब है, मैं मार्केट में नहीं जा सकता, तो ये जी जी सारी जी ऑप्शंस मुझे मिल रही हैं। अमेजन है, जी, रिलायंस है, फ्लिपकार्ट है, कैशबैक करेक्ट, है, क्रेडिट कार्ड कंपनी यस, अपना कह रही हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनी में अगर आप देखोगे, अमेजन के जो वेबसाइट पे एक ऑप्शन आती है कि अगर मुझे आज एलजी का टीवी लेना है और मेरे को लोन लेना है, तो उनका लोन कंपनी से टाई अप है। दूसरी एक ऑप्शन है, 1 लाख का मैंने टीवी लेना और मेरा क्रेडिट कार्ड है, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं देना, मैं ईएमआई दे सकता हूँ। ईएमआई उस का एक क्या, हाँ लाख जी को सर, मैं 5 ईएमआई में विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड यस होल्डर यस, हूँ। तो ये भी बड़ी मैं अच्छी का, ऑप्शन है, 20-20 हजार रुपए, मेरे को 1 लाख रुपए। तो इतनी सारी जी जी, इन्वेंशन आ चुकी हैं। तो बिल्कुल यही बिल्कुल, मैं मतलब उसके बीच में इसकी पोजीशनिंग करनी, एक स्ट्रेट अवे पोजीशनिंग, तो यह मैं सेविंग कर रहा हूँ अपने लिए। लेकिन जी जी, सेविंग मुझे आज अमेजन भी दे रहा है। मुझे तो मैं एक एक्सेल शीट बनाऊं कि वेस्टीज से मैंने 3500 का लिया, उसमें एमआरपी 4800 का है, तो मुझे कितनी सेविंग वेस्टीज से मिली, कितनी सेविंग, ये लोग बहुत लोग यही करते हैं। या मुझे जी कल को आगे इसको सेल ऑफ करना, इस स्कीम को या इस कॉन्सेप्ट को, तो मैं भी यही करना चाहूंगा कि चलो मैं 3500 और जो वाउचर है जो 2500 का मिले, टोटल सेविंग कितनी है। तो मतलब ये आपको आई एम जस्ट टेलिंग यू, वी कैन टेक इट अप इन द नेक्स्ट सेशन। और तो मतलब मेन कंसर्न तो यही है। फिर इसमें जैसे वही अग्नि चाय है, तो कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं, और जी वेस्टीज का कोई अपना ब्रांड है। हेल्थ एंड वेलनेस में कौन कौन सी दवाइयां अवेलेबल है, जैसे आपका जी पैरासिटामोल है या इस तरीके की कुछ दवाइयां हैं विच कैन बी ओनली गिवन थ्रू प्रिस्क्रिप्शन, कुछ दवाइयां विच कैन बी जी, गिवन ओवर द काउंटर। तो अब किसी यस, को कोई दवाई लेनी है, तो वो ये तो कहेगा नहीं कि जी 4 दवाई मैं आपसे ले लेता हूँ, 5 दवाई मैं मार्केट, वो कहेगा मैं दीप पे जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, एक पैरासिटामोल भी चाहे मुझे वेस्टीज से वो मिल रही हो। लेकिन अगेन जी देयर आर जी, ऑल काइंड ऑफ पीपल, वो कहेंगे मुझे नहीं करेक्ट, पढ़ना है, इस चक्कर में मैं तो सीधा जाके ऑनलाइन कॉल किया, अपोलो हेल्थ केयर, 4 दवाइयां मुझे दे दो, घर पे आके उसने जी जी डिलीवरी कर दी। जी तो जी मतलब ये आपके लिए भी एक दूसरा एक मुझे इसमें लग रहा था कि जैसे आपने एक पॉइंट बोला कि इसमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है। क्या कल को जी कोई जी, ऐसा मॉडल हो सकता है कि यहाँ पे जो एसओएल या यहाँ डीयू के बच्चे हैं, वो कुछ अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें और वो मैन्युफैक्चरिंग करके इसको वेस्टीज को सप्लाई कर दें। तो जैसे इनका अपने अपना में ये भी आई एम जस्ट थिंकिंग, कल को आपके अगर एक लीडरशिप्स में कोई ऐसा हो, तो उसी में कुछ उनका आगे कुछ हो जाए कि चलो आपने सप्लाई किया तो आप इसकी एक जी ये एक अलग वे है कि उन्होंने साबुन, जी यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लाना चाह रहा हूँ डीयू में कि ये यहाँ जी पे जी, हॉस्टल्स हैं। डीयू मतलब ओके, मार्केट तो बहुत बड़ी है, युवा मार्ट करके एक प्लेटफॉर्म ऑफलाइन ऑनलाइन, उसमें हम इसके जी बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन उसमें मेरा क्या था, बच्चे बनाएंगे साबुन, पेन, पेपर, आप सब कुछ बनाओ और उसको हम हॉस्टल्स में सप्लाई करेंगे। वही जो आप कॉन्सेप्ट ओके, कहना चाह रहे हो, उसमें प्राइसिंग कम जी जी, पड़ेगी। इट विल बी ओन्ड बाय स्टूडेंट, रन बाय स्टूडेंट, डिलीवर्ड बाय स्टूडेंट एंड डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट्स। उसमें सब डिलीवर टू चीज दिस, मिलेगी, ओके, उसका नाम होगा युवा मार्ट, और उसमें सब चीजें स्टूडेंट ही बनाएंगे। अभी क्या ओके, है, जैसे कमला नगर में किसी स्टूडेंट को साबुन खरीदनी है, चाय पत्ती खरीदनी है, वो जी मार्केट जी जाएगा, विजयनगर जाएगा, कमला नगर, या ऑनलाइन में। तो हम एक जी, स्टूडेंट के लिए मॉडल सोच रहे हैं कि स्टूडेंट उसको बनाए, डीयू में जगह बहुत है, और उनको फ्रेंचाइज पॉइंट दे दें हॉस्टल्स में, जगह जगह वो खोले, और वहां करेक्ट, हॉस्टल में लड़का लड़की अपने कमरे से बाहर आए, उसको कहीं नहीं जाना, उसको चाय पत्ती सब उसके कमरे के नीचे, जैसे कैंटीन्स होती हैं, तो हर एक ओके, हॉस्टल में कैंटीन सेटअप कर दी, जो अभी कहीं नहीं है डीयू में। उस जी जी, कैंटीन का कॉन्सेप्ट ये वो स्टूडेंट ही रन करेंगे, तो हम और ओके, स्टूडेंट के ही प्रोडक्ट्स उसमें अवेलेबल होंगे। या जी हम जी, वेस्टिंग के साथ टाई अप कर लें
कि वेस्टीज जो 4500 का 3800 में दे रहा है, कुछ प्रोडक्ट मैं वेस्टीज से सोर्स करके उस कैंटीन में डिस्प्ले कर दूं, वहां से आके वो स्टूडेंट ले लें। तो दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच आई कैन थिंक। ओके, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया जो मेन कंसर्न मैं है। समझ गया सर। इसमें सर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है कि जैसे आप बता रहे हैं, तो ये तो आप अपनी तरफ से जो एंटरप्रेन्योरशिप या स्टूडेंट्स के लिए जो युवा मार्ट बता रहे हैं, तो दैट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेड ऑफिस, वो दे कैन टेक केयर ऑफ दैट, और वो हम उससे वो तो आगे आने वाला टाइम बताएगा हमको। सेकेंडली सर, जो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि चाहे अमेज़न है या ब्लिंकिट है या ग्रोफर्स है, दे विल गिव ओनली द डिस्काउंट, दे आर नॉट गोइंग फॉर अ बिजनेस मॉडल। वो मेरे को कहीं भी किसी भी सूरत में मेरे को बिजनेस नहीं करने देंगे, which we are providing. The platform which Vestige is providing is giving us a platform that we can go for entrepreneurship. We can build up a business on the products provided by the Vestige with the quality and with the brands. तो उसमें ये है कि and all over the country and moreover for the 10 more countries. Sitting over here in India, I can do that. इंडिया में बैठ के मैं सिर्फ एक अपनी रजिस्ट्रेशन करके, एक अपनी आईडी बना के मैं पूरे 8 कंट्रीज 10 कंट्रीज में काम कर सकता हूँ, इंडिया के अंदर भी काम कर सकता हूँ, कहीं पर भी रेफरल देके मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकता हूँ, फ्रेंचाइजीज बना सकता हूँ, विच विल नॉट बी अवेलेबल विद द अदर प्लेटफॉर्म्स, वेदर इट्स एनी प्लेटफॉर्म, Amazon, Blinkit, Grofers, whatsoever। तो वहां पर ये अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इफ आई एम एन एंथुसियास्टिक एंटरप्रेन्योर और मुझे कुछ करना है एंड मुझे आगे बढ़ना है, तो माय चॉइस विल बी ओनली दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। वेदर मेरे साथ में जो भी मेरे कंपटीटर हैं उनका भी रह सकता है, लेकिन दिस इज द सेंट्रल आइडिया दिस कंपनी इज प्लेइंग ऑन। ये है एक्चुअल आइडिया, सेंट्रल आइडिया सर हमारा, कि हमने साथ साथ में लाइवलीहुड भी देना है। ये तो दे ही रहे हैं, सेविंग्स तो दे ही रहे हैं, but within that also parameters, within those parameters we are providing the livelihood, not only the livelihood, उसमें security भी है सर, because this is a 7th generation plan what we are providing. If something goes wrong with the person who is working over here and he is earning say he is earning 1.5 lakh per month, so that money will go to his nominee, and that will be a continuous process for another 7 generations. So this is not available with the other platforms. So here we have got the money as far the security is concerned. I am secured over here if I am doing a business over here. तो मेरी बिजनेस इधर उधर नहीं जाएगी, मेरी यहीं पे रहेगी, और अगर कुछ कल को कुछ होता तो वो that will be pass on. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सर। चलिए ठीक है, कोई नहीं। आज का जो सेशन था बेसिक, उससे एक ओरिएंटेशन, थोड़े काफी कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे मालूम है स्टूडेंट्स के होते हैं, तो काफी कुछ इससे आंसर्स मिले हैं। एंड डेफिनेटली जो मैंने शुरू में आपको बोला था कि दिस हैज टू बी अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, तो दैट इज व्हाट हैज बीन डन इन टुडे सेशन। काफी लोगों को इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफी उनको आइडियाज मिलेंगे, काफी कुछ चीजें मैंने उनके बिहाफ पे कवर भी की हैं, तो दे विल हैव सम क्लैरिटी। और एक आपका मैं पॉइंट समझ गया, दिस इज नॉट जस्ट अ शॉर्ट टर्म गेम, दिस इज अ बेसिकली अ करियर पाथ। इसमें एक आपको अपने लिए पूरा लाइवलीहुड और अपना एक बिजनेस प्लान मिल रहा है, तो यू कैन लुक इट एज एन एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शन। तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे लोगों के माइंड में रजिस्टर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना है। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन। एंड चलिए ठीक है, एंड आई थिंक थैंक्स अ लॉट टू मिस्टर विवेक एंड टू कॉल सर जी फॉर योर टाइम। काफी अच्छे वे में आपने बड़ा सरल भाषा में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों को एक सिंपल भाषा। प्रेजेंटेशन वाज वेरी इंप्रेसिव, बिल्कुल ही एक लेमैन लैंग्वेज में, क्योंकि ये हाई फाई कॉन्सेप्ट्स लोगों को समझ नहीं आते। आपने बड़े अच्छे बिल्कुल सर, सिंपल कॉन्सेप्ट स्ट्रेट सिंपल लैंग्वेज में आपने बता दिया इसमें। और वो कॉल जी ने भी अच्छे वे में लास्ट में कंक्लूड किया कि इसमें आप ठीक है, कंपनी आपको सेविंग्स तो दे देंगी, लेकिन जो आपको एक कवरेज है, जो एक आपको लाइवलीहुड है, जो एक आपको सपोर्ट सिस्टम है, वो उसमें नहीं मिलेगा। वो तो आई एग्री डेफिनेटली। तो चलिए ठीक है, वी कैन बी इन टच, एंड दिस वीडियो आई थिंक वी कैन एंड अप हियर आल्सो। ज्यादा बल्कि हमने तो 10 मिनट्स ओवर स्ट्रेच किया। सो ठीक है, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फर्दर फ्रॉम हियर। या श्योर, राइट, ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।